चौहान रेड्डी ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दूसरे दिन भी दौरा किया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करके बातचीत की। वज़ीर आला ने मुतासरीन को 2 महीने के अंदर नुकसानात का मुआवजा दिए जाने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि मुआवजे की तकसीम में शफाफियत बरकरार रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलावरम RNR पैकेज के लिए मरकजी हुकूमत के साथ रियासत की लड़ाई जारी है। पुलावरम के लिए मरकज से कई बार नुमाइंदगी की जा चुकी है। పంట పొలాలు కానీ ఇళ్ళ విషయంగా కానీ ఏ ఒక్కరికి నష్టం జరిగినా కూడా ఎవ్వరూ బాధపడకండి, భయపడకండి. ఎందుకనంటే మన ప్రభుత్వం ఎలా ఎగరగొట్టాలని ఆలోచన చేయదు, ఎలా ఇప్పించాలి అని చెప్పి ఆలోచన చేసే ప్రభుత్వం మంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. వాలంటీర్ నేరుగా పలానోనికి పలాని డ్యామేజ్ జరిగింది అని చెప్పి కూడా మీ గ్రామ సచివాలయాలలో లిస్టు కూడా పెట్టేస్తాడు. ఏ ఒక్కరికి కూడా అన్యాయం జరగదు. ఈ రోజు నుంచి 2 నెలలు 6 వారాలు అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఒక 2 వారాలు ఎక్స్ట్రా ఇవ్వండి. 8 వారాలు అంటే 2 నెలల్లో ప్రతి ఇంటికి కూడా మీరు నష్టపోయింది కూడా మీకు వచ్చేట్టుగా కూడా చేస్తానని చెప్పి కూడా హామీ ఇస్తాను. बीजेपी लीडर माधव ने पोलावरम प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने का जगन हुकूमत पर इल्जाम लगाया। उन्होंने प्रोजेक्ट की तैयारी में लापरवाही के लिए भी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने जगन हुकूमत पर माहिरीन और मरकज की हिदायत को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। Situation at Polavaram is completely disturbing. The complete whatever the situation you think, it's only because of the negligence of the state government. Both officials and the government also completely neglected the progress of the project. The phase in which the project was proceeding came completely to a halt when the present regime has come. Around a delay of 9 months has happened only to change the contractor and also to change tenders, reverse tendering, the new kind of mechanism that was brought in to bring in the people who are very demanding a project management system to be installed. We want audit to be done. Till date, no audit was done for the last 5 years. Audit should be done. And there should be complete transparency of the work that is progressing. Every morning, what kind of activity you are contemplating. Every evening, what kind of activity that is completed. This kind of a system can be developed. With completion of the system, then only we can have the Polavaram to be completed before 2024. आंध्र प्रदेश CPI के सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने पोलावरम मुतासरीन की इमदाद के लिए मरकजी हुकूमत से इमदाद जारी रखने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 550 देहात मुतासर हो गए हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की हुकूमत से अपील की है। Central government and state government are responsible for this submersion. The people are facing lot of problems. Thousands of people are evacuated from that submerged areas. They are facing lot of problems. I request the central government to allot funds for the evacuation of Polavaram site. The central government should allocate funds for the evacuation of that Polavaram project. The Chief Minister, Mr. Jagan Mohan Reddy, is unable to demand the central government to allot funds for the evacuation. This is very unfortunate situation. Because of their sacrifice, now they are facing these problems. जिला NTR पुलिस ने मुख्तलिफ मामलों में पकड़ी गई गैर कानूनी शराब पर बुलडोजर चलाकर तबाह कर दिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि महकमे आबकारी और पुलिस की कार्रवाई में मुख्तलिफ ब्रांड की 62,461 शराब की बोतलें, जिसकी मार्केट कीमत 2 करोड़ है, बुलडोज कर दी गई हैं। उन्हें तबाह कर दिया गया है। इस मौके पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर SEB आबकारी के हुक्काम मौजूद थे। कमिश्नर ने शराब तैयारी और स्मगलिंग में मुलविस होने पर PD एक्ट के तहत कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। బాటిల్స్ 62,500 వరకు మనం ఈరోజు డిస్ట్రక్షన్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చి ఈరోజు ధ్వంసం చేయడం జరుగుతుంది. ఇది మొత్తం 877 ఎక్సైజ్ కేసుల్లో మనం SEB అఫీషియల్స్ మరియు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు కన్ఫిస్కేట్ చేసుకున్న వస్తువులు ఇవన్నీ. వీటి విలువ దాదాపు 2 కోట్లకి పైగా కూడా ఉంటుంది. कर्नूल आउटर रिंग रोड के पास सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार लॉरी ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में मौके पर ही 3 अफराद की मौत हो गई। 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को कर्नूल सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। मरने वालों की शनाख्त सोमशेखर गणेश रुद्रा के तौर पर की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रैफिक को बहाल किया गया। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
जिला अनंतपुर में SUCI कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी की जानिब से आर्ट्स कॉलेज के करीब से सप्तगिरी सर्कल तक रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में कमी करने और जरूरी अशिया पर लगाई गई GST को कम करने का मुतालबा किया। इन्होंने हुकूमत पर बिजली के बढ़ाए गए चार्जेस और बस चार्जेस को वापस लेने का मुतालबा किया। प्राइमरी स्कूलों के इंतजाम को रोकने, मुख्तलिफ शोबों में खाली असामियों को पुर करने, किसानों को सस्ती कीमत पर बीज खाद फराहम करने का भी मुतालबा किया गया। इस रैली में मजदूर, किसान, ख्वातीन, नौजवान और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हुकूमत पर अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। रैली के बाद मीटिंग मुनक्किद की गई। SCUCI अनंतपुर जिला कमेटी के सेक्रेटरी ने ये तमाम बातें बताई। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और महिलाओं पे जो अत्याचार चल रहे हैं इसके खिलाफ एक आंदोलन किया गया है। हम लोग केंद्र और जो राज्य सरकार है, ये सरकार हर रोज आवाम पे टैक्सों का भार बढ़ाती हुई उनके जीवन को और दुर्भर कर रही है। कर्नूल में तेलुगु यूथ कमेटी ने रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने वज़ीर आला YS जगन की जानिब जॉब कैलेंडर के नाम पर नौजवानों के साथ धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। पार्टी यूथ लीडर अब्बास ने कहा कि YCP हुकूमत से इंतखाबी वादे को पूरा करते हुए जॉब कैलेंडर जारी करने की मांग जायज़ है और हम कर रहे हैं। जॉब कैलेंडर अब तक नहीं पता करें, जॉब हम बोले उनके माँ बाप लिए पूरे बहुत पीछे दिल दुखा ले रहे हैं। आपके गवर्नमेंट को आने वाले दिनों में तुम्हारे को वोट नहीं देते हैं उन लोग। तुम्हें सोचो इम्यूनिटी जॉब की कैलेंडर विड्रॉल करना है बोलकर हमारे तेलुगु युवता तरफ से हमें डिमांड करते हैं। कर्नूल में वाक़ की VR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन का 64वां यौम तासीस मनाया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली पत्तीगुंडा, साबिक़ पार्लियामेंट B रेणुका और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इन्होंने कॉलेज की तारीफ की, ख़वातीन इल्म के जेवर से आरास्ता करने में ताउन करने की सताइश की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कॉल पर कर्नूल में भी सत्याग्रह की गई। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी के खिलाफ ED कार्रवाई की मजम्मत की गई। जिला कांग्रेस सदस्य सुधाकर बाबू ने कहा कि BJP ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत ED के जरिए कांग्रेस क़यादत को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस अवामी मसाइल को हल करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। कांग्रेस पार्टी का सैनिक करोड़ा है, ये सब सोनिया जी, राहुल गांधी के साथ है। मोदी, अमित शाह भी क्या भी कर सकते नहीं, क्या भी कर सकते नहीं। अनकंडीशनली ED केसेस वापस लेना। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कर्नूल में उज्ज्वला भारत उज्ज्वला विद्युत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। रुकन असम्बली पंजाब के राम भोपाल रेड्डी और हफीज़ खां प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुल्क में पिछले 8 सालों के दौरान इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं। ज़िला कलेक्टर कोटेश्वर राव ने कहा कि दूर दराज इलाकों में भी बिजली की सहूलत में बेहतरी आई है और आने वाले साल में शोबे बिजली को मज़ीद तरक्की दी जाएगी। कर्नूल में MMRPS के ज़रिए तमाम SC तबके की दर्जाबंदी का मुतालबे को लेकर एहतजाज तीसरे दिन भी जारी रहा। इन्होंने BJP से पार्लियामेंट के रवा सेशन में SC तबके की दर्जाबंदी का बिल पेश करने और इसे पास करने का मुतालबा किया। इन्होंने SC दर्जाबंदी के लिए गुज़श्ता 28 सालों से जद्दोजहद की जा रही है, उन्होंने ऐसा कहा। इन्होंने BJP लीडरों की जानिब से MRPS लीडरों पर हमला करने की मजम्मत की, हमला करने वालों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। कर्नूल में तेलुगु फिल्मों के अदाकार N बालाकृष्णा अपनी नई फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। बालाकृष्णा कर्नूल ज़िले में गुज़श्ता कुछ दिनों से NBK 107 फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। कर्नूल शहर में कोंडा रेड्डी प्रोजेक्ट और ब्रिज, कोल्स कॉलेज, राजविहार, RSS में अहम मनाजिर की शूटिंग रोड जंक्शन और बंगारोपेटा के इलाकों में की गई। इस फिल्म में बालाकृष्णा के साथ अदाकारा श्रुति हासन काम कर रही हैं। फिल्म की शूटिंग देखने के लिए बद्दाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18